Hello student, this is Garma, your social study teacher. First of all, I would like to welcome you to this video because I am sending you this video after a long time. I recognize that no one are paying attention toward this video. That's why I stopped to send that video. But I have started again to send this video. But I'm suppo I am I like to get in query from you against this video because if I didn't get in yeah, your query, so I will start thinking that you are not very sincere, you are not very curious about your study. So please pay your attention toward this toward your study because of this situation occurred in front of us, coronavirus situation. We are not supposed to come to an classroom setting and do regular study. So this is the only medium we can do study. So please pay your sincere attention toward this. And so and I'm welcome you, but I know you are spending your endless vacation right now, and we are not aware that how much long this will go on. So please, this is the only way we can teach you. So pay your attention towards your study, and I will call you, any one of you, uh, to ask a question randomly, and if someone not giving me the answer, I will mark their marks very few, and I will deduct their marks. And so here we start this chapter. I have already sent you one second chapter video. Now it's time to send you the third chapter video, and this third chapter is our changing earth. So first of all, the question arises, we lived here, and nothing is changing, all things are as same as, means if we see sky, its color always sky blue. If we see your home, this always be same. But if we start doing construction over it, then its shapes will change. But before that, your house simply seem same over the time. Okay, so हमारा जो अर्थ है, आर चेंजिंग अर्थ मीन्स कि हाउ आर अर्थ गेटिंग चेंज्ड डे बाय डे, कि किस तरीके से हमारी अर्थ अपनी शेप चेंज करती है. वाई दिस अर्थ क्वेक अकर्स, वाई दिस डिजास्टर्स अकर, दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस अकर्ड इन आर अर्थ. एंड दिस इज द मेन मोटो ऑफ दिस chapter. To understand these kind of things is known as it is the main motto of this chapter of our changing earth. Let's start this chapter. A lithosphere is broken into number of plates known as lithospheric plates. You will be surprised to know that these plates move around very slowly, just a few millimeter each year. This is because of the movement of the molten magma inside the earth. In this chapter we are going to learn about the lithosphere. We already have discussed about what is lithosphere. Lithosphere means whatever the things attached to our land, where we stand on earth. This is known as lithosphere. And the lithosphere has lots of layers of earth, means कि हमारे लिथोस्फीयर में काफ़ी सारी layers होती हैं. And these layers moves around very slowly. जो हमारी लिथोस्फीयर में क्या होती हैं, layers होती हैं, वो क्या होती हैं, वो मूव करती हैं टाइम टू टाइम, बट बहुत स्लोली करते हैं. बिकॉज ऑफ दैट वी आर नॉट सपोज टू फील दैट. हम उसको क्या कर पाते हैं, फील नहीं कर पाते हैं.
फेल्ट नहीं कर पाते, बिकॉज इट मूव्स मिलीमीटर और सेंटीमीटर इन अ ईयर। वो एक साल में इतने कम मूव करता है, इसलिए वी आर नॉट सपोज टू फील दैट। And this is because of the movement of molten magma inside it. Why this move? Because of the molten magma inside the earth. जो मैग्मा होता है हमारे अर्थ के अंदर, क्या होता है, मैग्मा होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो अर्थ है, अर्थ के अंदर जो प्लेट्स हैं वो क्या करती हैं, मूव होती है। मैग्मा एक लिक्विड फॉर्म होती है हमारे सॉइल की, या फिर कह सकते हैं हमारे मिनरल्स की, जो होते हैं हमारे अर्थ के अंदर जो मिनरल्स होते हैं उसकी लिक्विड फॉर्म को क्या बोला जाता है, मैग्मा बोला जाता है। एंड इट एग्जिस्टेड अंडर डीप, दिस एग्जिस्ट इन डीप ऑफ द अर्थ। बहुत इनसाइड जाके हमें अर्थ के वो मैग्मा हमें मिलता है। द मॉल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन द सर्कुलर मैनर एज शोन इन द एक्टिविटी। जो हमारे so where we are, the molten magma inside the earth moves in a circular manner as shown in the activity। कि जो molten magma होता है वो क्या होता है, it flows in a round direction means कि वो एक circular manner में क्या करता है, हमारा जो molten magma होता है वो flow करता है। Let's start here this paragraph stated that कि how the magma is moving in a circular manner. You can learn about this through this activity. The activity is take a small colored paper palette and put it in a beaker half filled with water. For this activity you have to take one small paper palette, मतलब एक पेपर का मतलब गोल करके पेपर का लेना है, एंड पुट इट इन अ बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर। एक आपको एक बर्तन लेना है, एक आपको वेसल लेना है, एंड इट शुड बी फिल्ड हाफ ओनली, जो वाटर से ये हाफ फिल्ड होना चाहिए। एंड प्लेस द बीकर ऑन अ ट्रिपड स्टैंड एंड हीट इट, एंड पुट दैट बीकर ऑन एन ऑन एन गैस या फिर कुकवेयर। मीन्स जो बीकर होता है हमारे, हमको जो आपकी गैस होगी यहाँ पे, आप जिस पे आप वो जो कुक होता है उस पर आपको दैट यू हैव टू पुट दैट वेसल ऑन दैट, एंड एज द वाटर वार्म्स अप you will observe that the paper palette is moving upward along with the warm layer of water and then sinks back along with the cooler layer of water. The molten magma inside the earth moves in a similar manner, and when this paper, when the water start getting heated, then you going to see that paper are coming upward with the hot water and going downward with the cooler water. Means that paper palette moves in a circular manner. In this same way the molten magma also moves in inside the earth in a circular manner. Now the next paragraph is the movement of these plates cause changes on the surface of the earth. Because of this movement there has been occurred lots of changes on earth. The earth movement are divided on the basis of forces which cause them. कि जो अर्थ मूवमेंट होता है उसमें दो तरीके की फोर्सेस होते हैं. वी हैव डिवाइडेड दैट फोर्सेस इनटू टू कैटेगरी. द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज इंडोजेनिक फोर्स. दैट फोर्स which pressure the earth from inside, that is known as indogenic. Indo means indo का ही मतलब होता है inner, and the exogenic means the force that works on earth from outside the land, that is known as exogenic. Exogenic force जो होते हैं, जो हमारे क्या होता है outside होते हैं earth के. Now the earth movement, look at this flow chart. Earth movement is divided into two categories: endogenic force and the exogenic force. And the endogenic force are divided into two forces: sudden forces and dystrophic forces. Means जो sudden movement forces जो होता है हमारे like
वॉल्केनो बस्ट हो जाना, लैंडस्लाइड्स हो जाना, लाइक अर्थक्वेक आ जाना, दिस इज़ द सडन फोर्सेस दैट अकर्ड ऑन लैंड फ्रॉम आउटसाइड. And the second one is dystrophic forces, means building mountains, मीन्स अगर आपके जो माउंटेन्स होते हैं वो हमारे बिल्डअप हो रहे होते हैं धीरे धीरे करके. डिस्ट्रॉफिक मीन्स आपको कैसे समझाऊँ, हाँ ठीक है, लाइक आपका हमने ये लिया, ये आपकी अर्थ है, एंड अर्थ क्या हुआ बीच में, बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक क्या हुआ, जो अर्थ है वो अर्थ हैड एन क्रैक आ गया उसमें यहाँ से. देन व्हाट हैपन, दैट अर्थ divided, that land divided and cracked into two parts, and that cracked start building mountain, and this is because of some force, because of some force that earth start building mountain. This is known as dystrophic forces. After disaster, this kind of force pull up that two part of land into one part, and the outcome of that force is building of another mountain. This is known as dystrophic forces. And the second one is exogenic forces. Exogenic force means exogenic force that pressurize land from outside of it, and endogenic means that pressurize earth या that pressurize layers of land from inside of it. जब हमारी एंडोजेनिक का इसे एंडोजेनिक क्यों बोला गया है, बिकॉज द वॉल्केनो बस्ट होता है तो उसकी जो मैग्मा होता है वो लावा में कन्वर्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ दैट इनसाइड फोर्सेस. एंड अर्थक्वेक क्यों होता है, जब व्हेन द लेयर्स द मैग्मा getting more heated, then the earthquake layers started depleting from each other, and this caused earthquake. And the landslide also the one of the reason of it. And because of this the building mountain, जब हमारा earthquake जो crack होता है वो because of that earthquake हमारे crack आ जाते हैं हमारे land पे, and then crack में start pressurizing both the land start pressurizing each other, and that converted into building mountain, and this force is known as the dystrophic forces. And the exogenic forces is known as erosional and depositional forces. कि मीन्स जो एक्सोजेनिक होता है, द फोर्स दैट अकर ऑन लैंड फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इट इज़ नोन एज द एक्सोजेनिक फोर्सेज. एंड द इरोजनल एंड डिपोजनल, इरोजनल मीन्स होता है कि जो लैंड की जो ऊपर की लेयर जो सैंड होती है वो एक दूसरे से मतलब अपनी जगह से बार बार हटना, उसे बोला जाता है इरोजनल. एंड डिपोजिशनल मीन्स उस एक जगह पे बहुत सारी सैंड का आ जाना, उसे बोला जाता है डिपोजिशनल. एंड वाई दिस हैपन, बिकॉज ऑफ दीज लाइक रिवर्स की वजह से होता है, ये विंड की वजह से होता है, सी वेव्स की वजह से होता है, एंड द ग्लेशियर्स की वजह से भी होता है. बिकॉज द in a current scenario glacier are melting day by day. जो हमारे ग्लेशियर हो रहे हैं वो मेल्ट होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग इज़ द रीज़न ऑफ is the reason why our earth getting heated day by day because of global warming. and global warming की वजह से क्या है, our earth getting heated day by day, and for the result of that glacier are melting day by day. Next, now endogenic forces sometimes produce sudden movement and at the other time produce slow movement. Sudden movement like earthquake, volcano cause mass destruction over the surface of the earth. जो हमारे सडन मूवमेंट होता है, सडन हमारे कुछ मैग्मा की वजह से क्या होता है, वॉल्केनो बस्ट हो जाते हैं, अर्थक्वेक आ जाता है, इसे क्या बोला जाता है, हमारा एंडोजेनिक फोर्स है. दैट इज एंड दिस फोर्स हैपन सडनली, इसलिए दैट्स व्हाई एंडोजेनिक फोर्स इनटू टू कैटेगरी. फर्स्ट वन इज सडन.
Volcano is a vent in the earth crust and through which molten material erupt suddenly. Means क्या होता है, this is the a picture of volcano. क्या होता है कि यहाँ पे हमारा क्या है, मैग्मा, जो इनसाइड दैट वॉल्केनो दैट मैग्मा कम्स एंड फिल दैट पिट मीन्स एक गड्ढा होता है, उसमें क्या होता है कि जो मैग्मा होता है वो फिल्ड हो जाता है पूरा, एंड देन दैट मैग्मा प्रोड्यूसेस सम काइंड ऑफ गैसेस, एंड बिकॉज ऑफ दैट गैसेस मैग्मा go getting flow in upper side because of that gas, and when the gas are pressurizing that volcano, and then that magma started erupting from that crater, that is known as crater, from that crater, and this is known as volcano eruption, that when the lava comes onto the earth या on land. ओके मैं आपको एक नॉर्मल लैंग्वेज में बताती हूँ कि जब हमारा मैग्मा होता है दैट कलेक्टेड इन एन पिट या दैट कलेक्टेड इन एन लार्ज सरफेस, देन दैट लार्ज सरफेस then that huge amount of magma produces some kind of gases. Because of that gases, because of that gas, that magma comes into upper side, and comes into the upper side, and through that crater that magma erupted and start coming onto the land. This is known as volcano eruption. Similarly, when the lithospheric plates move, the surface of the earth vibrate, and when the lithosphere plates move, the surface of the earth vibrates, and the vibration can travel all around the earth. अब why the earthquake happen? Because of that lithospheric plates move, and the surface of the earth vibrate, and the vibration can travel all around the earth, and these vibration are called earthquake. And the places in the crust where movement start is called focus, and the places on the surface above the focus is called epicenter. Okay, look at this diagram. When that crust starts getting vibration, that place where earthquake occur in crust, this is known as focus. Because why this is known as focus? Because it's an origin place of earthquake. मतलब इस प्लेस से क्या हो रहा है, earthquake का origin हो रहा है, earthquake यहाँ से उसका birth हो रहा है, and the upper side of that force is known as epicenter. आपने बहुत बार अपनी न्यूज़ में पढ़ा होगा कि earthquake आया नहीं, उसका epicenter ये दिल्ली था, या उसका epicenter ये मध्य प्रदेश था. तो why this is known as epicenter? The under of that layer is somewhere, it is somewhere, some point is focus of that earthquake. वहाँ पर उस लैंड के अंदर कोई ना कोई एक लेयर होगी जहाँ पे वो फोकस होगा उसका. Now vibration travel outward from the epicenter as waves, and greatest damage is usually closer to the epicenter, and the earthquake decrease away to the एंड जो वाइब्रेशन होती है वो एपिक सेंटर से क्या होती है, आउटर साइड जाती है, एंड वट एवर द थिंग नियर बाय दैट एपिक सेंटर अफेक्टेड मोस्टली. जो भी हमारी चीज़ें हमारे एपिक सेंटर के पास होती हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं, एंड जो हमारे एपिक सेंटर से दूर होती हैं वो थोड़ी कम अफेक्टेड होती है. ओके, नाउ द नेक्स्ट. Although earthquake cannot be predicted, the impact can certainly be minimized if we are prepared beforehand. We are not right now able to
who predict, मतलब हम अभी इतने कैपेबल नहीं हैं, वी आर नॉट हैविंग दैट काइंड ऑफ मशीन थ्रू दैट वी कैन प्रिडिक्ट दैट अर्थक्वेक विल हैपन। ये सडन होता है, हम इसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं। वी आर हैविंग मशीन फॉर मेजरिंग द force and pressure of that earthquake, but we are not able to predict या फिर to forecast the earthquake beforehand। हम पहले से पता नहीं लगा सकते कि earthquake कब आएगा। ठीक है। सम कॉमन earthquake prediction method adopted locally by people include studying animals behavior, fish in the pond get agitated and snakes come to the surface। जब क्या होता है, हाँ कुछ हमारे ट्रेडिशनल वे है थ्रू दैट वी कैन गेट टू या वी गॉट टू नो अबाउट द earthquake will happen or not, but it's a traditional method, not a mathematical way or not a scientific way to predict that earthquake। like अगर आपने देखो जो earthquake आता है तो क्या होता है, मोस्टली जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो दे आर स्टार्ट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, वो उनका बिहेवियर कुछ चेंज होने लगता है, दे आर स्टार्ट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, मीन यहाँ से वहाँ रन करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड जो हमारी जो पॉन्ड में जो फिश होती हैं वो मतलब एजिनेटेड, मतलब यहाँ से वहाँ उनका तैरना या स्टार्ट हो जाता है। एंड स्नैक्स कम्स ऑन टू द सर्फेस, जो स्नैक्स उनका जो अंदर वो रहते हैं, स्नैक्स ज़्यादातर अपनी लैंड के अंदर रहते हैं, दे स्टार्ट गेटिंग कमिंग आउट फ्रॉम दैट लैंड या फ्रॉम दैट बिल, है ना। अर्थक्वेक नाउ, अर्थक्वेक का केस स्टडी दे रखी है। अर्थक्वेक हिट्स भुज में एक बार क्या हुआ था, अर्थक्वेक आया था इन 2001। मैसिव अर्थक्वेक मेजरिंग 6.9 रिक्टर स्केल हिट भुज टाउन ऑन 26 जनवरी 2001। 2001 में भुज, गुजरात में है ये जगह, वहाँ पर क्या हुए थे, बहुत हाई स्पीड हाई प्रेशर से क्या हुआ था, अर्थक्वेक आया था। Schools worst affected. At least 971 students and 31 teachers are feared to have lost their lives following the collapse of school building. 971 स्टूडेंट्स और 31 टीचर्स की जान जाते गई थी उसमें बिकॉज ऑफ स्कूल कोलैप्स। एंड थर्ड वन भुज रिलीफ रिपोर्ट belated 3 days after the quake, concern rose about food, blanket and the medical supply not reaching everyone। वहाँ पे 3 दिन के बाद वहाँ पे बहुत सारी फूड वगैरह का सप्लाई की गई, बट तब भी अर्थक्वेक में इतने लोग फंसे या इतने लोग मरे थे कि उनके पास फूड की सप्लाई नहीं हो पा रही थी। डिस्ट्रक्शन ऑफ भुज, 4 लाइन्स, वाटर पाइपलाइंस एंड पावर स्टेशन एंड ट्रांसमिशन लाइन वर नॉकड आउट। जो भी लाइंस हमारी जो ज़्यादातर जो हमारी लाइंस होती हैं, जो हमारे तार होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, अंडरग्राउंड फिटिंग होती है, और उसकी वजह अर्थक्वेक की वजह से क्या हुआ, वो सारे के सारे नॉकआउट मीन सब के सब टूट गए, उनका कनेक्शन ख़त्म हो गया था। फायर इन द सिटी, 100 ऑफ फायर स्टार्टेड एज चारकोल कुकर्स ओवरटर्न्ड। वहाँ पे कि बहुत जगह मतलब चारकोल्स, मतलब जो हमारे 2001 में चारकोल मतलब कोयले से बने हुए वो होते थे, भट्टियाँ वगैरह होती थी, काम होता था, वो स्टार्ट गेटिंग इरप्टेड, मतलब उधर फायर लग गई, मतलब जलने लगा, वहाँ पे इरोजन होने लगा। इरोजन मीन्स आग लगना, वो सब होने लगा वहाँ पर। 6 मीन्स इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन क्वेक जोन, द प्रेसिडेंट डिक्लेयर स्टेट ऑफ इमरजेंसी। और वहाँ पर क्या हुआ, इमरजेंसी लग गई, जैसे अभी हमारी इमरजेंसी लगी थी ना, इमरजेंसी वर्ड कि व्हेन any disaster comes to an place, then the government imposed इमरजेंसी ऑन दैट। मीन्स अभी कोरोना वायरस हुआ, हमारे क्या इमरजेंसी लगी। इमरजेंसी का मतलब ये होता है कि और चीज़ों को छोड़ के वहाँ पे उस चीज़ की रिलीफ को हम सबसे पहले ध्यान दिया जाता है। जैसे कोरोना वायरस में अभी क्या हुआ, पूरे देश में इमरजेंसी काइंड ऑफ सिचुएशन आ गई, लोगों को बाहर नहीं जाने दिया, उनको सिर्फ उनकी सेफ्टी पे ध्यान दिया, और बाकी सब चीज़ों को पहले बाद में प्रेफरेंस दी जाती है।
And then CM appeal to the center. Gujarat appeal for financial help. The Chief Minister of Gujarat has launched an appeal for the center to deal with the disaster. उन्होंने क्या, जो CM थे वहाँ के, जो गुजरात के CM थे, उन्होंने क्या किया, अपील की प्राइम मिनिस्टर से टू हेल्प देम फाइनेंशियली, उनको हेल्प करने के लिए फाइनेंशियली, बिकॉज दैट भुज टाउन अफेक्टेड ड्रास्टिकली बिकॉज ऑफ दैट अर्थक्वेक. नाउ अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस. अगर अर्थक्वेक आता है तो क्या करना चाहिए, व्हाट शुड वी डू इफ़ अर्थक्वेक हैपन. हमें क्या करना चाहिए, सेफ स्पॉट अंदर किचन काउंटर, टेबल, डेस्क और अगेंस्ट एंड इनसाइड कॉर्नर और वॉल. हमें जब भी कोई अर्थक्वेक आना चाहिए तो हमें कुछ ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जिसमें ऊपर एक शेल्टर हो. जैसे हम एक सेफ स्पॉट ढूंढ सकते हैं, लाइक जो किचन का जो हमारा काउंटर होता है उसके अंडर हम छुप जाएं, या फिर हमारे जो डेस्क है उसके अंदर घुस जाएं. पर सबसे अच्छा स्पॉट होता है कि हम बिल्डिंग से बाहर जाके एक खुले मैदान में आ जाएं. तो दैट इज़ मोस्ट सेफेस्ट स्पॉट फॉर नॉट गेटिंग इफेक्टेड बाय दैट अर्थक्वेक. स्टे अवे फ्रॉम फायर प्लेसेस से बिल्कुल स्टे अवे रहना चाहिए. एरिया अराउंड चिमनी के जो पास जो भी एरिया है उससे दूर रहना चाहिए. विंडो डेट शटर इंक्लूडिंग मिरर, पिक्चर फ्रेम जो होती हैं, विंडोज़ होती हैं, उससे दूर रहना चाहिए. हाँ, हमें दूर रहना चाहिए. एंड बी प्रिपेयर, स्प्रेड अवेयरनेस अमंग्स योर फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर एंड फेस एनी डिज़ास्टर कॉन्फिडेंटली. और हमें प्रिपेयर रहना चाहिए अगर कुछ ऐसा होता है तो, कि हमें सबको बताना चाहिए कि अगर अर्थक्वेक हो तो हमें ऐसा करना चाहिए, अपनी फैमिली को अवेयर करना चाहिए कि व्हाट शुड वी डू इफ़ अर्थक्वेक हैपेंड. मेजर लैंड फॉर्म्स. The landscape is being continuously worn away by two processes, weathering and erosion. Weathering is the breaking up of rocks on the earth's surface, and erosion is the wearing away of the landscape by different agents like water, wind and ice. The eroded material is carried away and transported by water and wind etc. and eventually deposited. This process of erosion and deposition create a different landforms on the surface of the earth. ये erosion major landforms हमारी because of that erosion and deposition की वजह से बनता है. एक एग्जांपल आपको बताती हूँ कि जैसे अगर आपको पता है कि जो सैंड होती है हमारे, आप कभी बीच पे जाते होंगे तो आपको सैंड दिखती होगी बहुत छोटी छोटी, जैसे सॉइल, मतलब हमारी जो सैंड कैसे बन जाती हैं. तो क्या है, जो हमारे एक जो माउंटेन्स होते हैं उनके जो पत्थर होते हैं वो पानी में आते हैं. एंड पानी में क्या होता है कि वाटर का इतना प्रेशर होता है कि वो एक छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर जाते हैं. और वो क्या होता है, इरोज़ होके वहाँ से जो वाटर के थ्रू वो इरोज़ होके बीच में आ जाते हैं. बीच पे वो सैंड के फॉर्म में हमें दिखते हैं. तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ इरोजन. बिकॉज ऑफ दिस इरोजन और जब जो सैंड पे इकट्ठा होता है तो उसे बोला जाता है डिपोजिशन. एंड बिकॉज ऑफ दिस इरोजन एंड डिपोजिशन फोर्सेज वेरियस लैंड फॉर्म वो क्रिएटेड. इसी तरीके से बहुत सारी लैंड फॉर्म्स क्रिएट हुई थी. लाइक वर्क ऑफ अ ना वर्क ऑफ अ रिवर, कि रिवर का काम क्या होता है, रिवर क्या लैंड फॉर्म्स बनाने में क्या रोल प्ले करता है. द रनिंग वाटर इन द रिवर एरोड द लैंडस्केप. व्हेन द रिवर टम्पल्स एट स्टीप एंगल over very hard rocks or down a still valley inside it forms a waterfall. मीन्स आप देख रहे हैं इसमें क्या होता है कि जो लैंड फॉर्म्स होती है कॉर्नर पे जाके ख़त्म हो रही है, मतलब माउंटेन से हमारा माउंटेन की तरीके का एक स्ट्रक्चर है, उधर क्या एक फॉर्म आती है. जब लैंड ख़त्म हो जाती है तो उधर से क्या होता है, वो पानी जो होता है लैंड पर वो नीचे फॉल होने लगता है. तो दिस इज़ नोन एज द वाटरफॉल. एज द रिवर एंटर द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बैंड्स नोन एज मिएंडर. जब वो एक प्लेन फॉर्म में आती है तो क्या होता है, वो एक फ्लो में आती है, एक राउंड सर्कल फ्लो में वो आगे फ्लो होते हैं वाटर. एंड दैट राउंड सर्कल फॉर्म इज़ नोन एज मिएंडर. ये से जो फॉर्म होता है उसे बोला जाता है मिएंडर.
Now, due to the continuous erosion deposition along the sides of the meander, the ends of the meander loop comes closer and closer, and in due course of time, the meander loop cuts off from the river and forms a cut-off lake, also called on oxbow lake. मीन्स जब क्या होता है, जैसे पानी जब जो हमारा मेंढर के चारों तरफ क्या होती है, इरोजन डिपोजिशन की वजह से क्या होता है, जो हमारी रॉक्स होती हैं, सैंड होती है, वो खट्टी होने चली जाती है, और एक टाइम ऐसा आता है कि कुछ पार्ट उस पानी का क्या होता है, अलग हो जाता है, और दैट इज़ नोन एज ऑक्सबो लेक. इसे क्या बोला जाता है, ऑक्सबो लेक. And at times the river overflows its bank and this leads to the flooding of the neighboring areas. और जब क्या होता है कि पानी को ज़्यादा अमाउंट में ऊपर से फ्लो होता आ जाता है, तो वो क्या कन्वर्ट हो जाता है, फ्लड में कन्वर्ट हो जाता है, बाढ़ में कन्वर्ट हो जाता है, और वो जो उसके आसपास के एरिया जो होते हैं उसे क्या करता है, अफेक्टेड करता है. बिकॉज एंड as it floods, it deposit layer of fine soil and other material called sediments along its bank. अब क्या होता है कि जो उसकी वजह से, फ्लड की वजह से जो पानी आता है, वो उसके साथ क्या होती है, कुछ मिट्टी वगैरह आती है, और जो मिट्टी एक जगह इकट्ठी होती है, उस मिट्टी को क्या बोला जाता है, सेडिमेंट सॉइल्स. एंड दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन. और उस प्लेन को क्या बोला जाता है, जो पानी के आसपास की जो जगह होती है, उस जगह को क्या बोला जाता है, फ्लड प्लेन. इस जगह को क्या बोला जाता है, फ्लड प्लेन. एंड द रेज्ड बैंक आर कॉल्ड लीव्स. एज द रिवर अप्रोचेज द सी, द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीज एंड द रिवर बिगेन टू ब्रेक अप. और जब क्या होता है कि लीव्स उसे बोला जाता है कि ऐसी जब एक जगह लैंड इकट्ठी होती एक जगह सॉइल इकट्ठी हो जाती है, तो वो सॉइल ऊंची होने लग जाती है, उसको बोला जाता है लीव्स. एंड और जब हमारे क्या होते हैं, जब रिवर्स कटने लग जाती हैं एक दूसरे से और डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज़ में बच जाती हैं, एक जैसे हमारी ऊपर से माउंटेन से क्या होती है, एक पानी फ्लो करके आता है, देन जो पानी आता है वो जमुना में कन्वर्ट एक जगह चला जाता है, उसे बोला जाता है जमुना का है, एक जगह चला जाता है तो उसे गंगा बोला जाता है. इसी तरीके से जब पानी आता है और वो डिफरेंट रिवर्स में कन्वर्ट हो जाता है, डिफरेंट पाथ ले लेता है, उसे बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटरीज. एंड द रिवर बिकम सो स्लो डैट इट बिगिन्स टू pour it slow. Each distributary form its own mouth and the collection of sediment from all the mouth forms a delta. मीन्स क्या, जब वो डिस्ट्रीब्यूटरीज अपनी एक जगह कन्वर्ट हो जाती हैं, और उन जो पानी के पास के जो एरिया होते हैं उनको बोला जाता है डेल्टा. क्या बोला जाता है, डेल्टा. वर्क ऑफ सी वेव्स. अब सी वेव कैसे वर्क करती हैं. द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव्स राइज टू द कोस्टल landforms, and sea wave continuously strike at the rocks, crack, develop, and over the time they become larger and wider, and hollow like caves are formed on the rocks and they are called sea waves. sea waves की वजह से क्या होता है, जो रॉक्स होती हैं उस प्लेस पे, वो क्या बनाती हैं, कोस्टल एरिया बनाती हैं, मतलब पत्थरों से लगा हुआ एक प्लेस बनाती हैं. ये वेव्स की, पानी की वेव्स की वजह से क्या होता है, एक जगह हमारे क्या होते हैं, रॉक्स इकट्ठे हो जाते हैं, और जब उन रॉक्स को बार बार जो वेव्स, पानी की जो वेव्स होती हैं वो स्ट्राइक करती हैं, तो वो क्या हो जाती है, वो रॉक्स कन्वर्टेड हो जाते हैं इनटू सी केव. सी केव मीन्स जब हमारे पूरे पत्थर पर कोई होल हो जाता है तो उसे बोला जाता है सी केव. और एज दिस कैविटीज बिकम बिगर एंड बिगर, ओनली द रूफ ऑफ द caves remain, thus remaining in this form is known as sea arc. जब वो जो होल होता है वो बिगर होता जाता है, बड़ा होता चला जाता है, जैसे एक हमारा ये है, इसमें छोटा सा एरिया ऐसे हुआ है, तो उसे बोला जाता है हमारा सी केव्स. जब ये एरिया बड़ा होता चला जाता है तो इस एरिया को बोला जाता है सी आर्क, जिसमें सिर्फ ऊपर की थोड़ी सी वॉल रूफ रह जाती है, थोड़ा सा एरिया रह जाता है, और नीचे बहुत बड़ा होल हो जाता है, उसे बोला जाता है सी आर्क. एंड फर्दर इरोजन ब्रेक द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट, एंड दीज वॉल्स लाइक फीचर आर कॉल्ड स्टेक्स.
एंड सिर्फ वो जब हमारा वो जब बार बार स्ट्राइक होते होते वहाँ से वो एक कुछ पोर्शन अलग हो जाता है और कुछ वॉल रह जाती है, तो उसे क्या बोला जाता है, स्टेक्स। उस वॉल को क्या बोला जाता है, स्टे। एंड द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ। एंड जब हमारे एक जगह इस तरीके के पत्थर इकट्ठे होते चले जाते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, सी क्लिफ। एंड द सी वेव्स डिपॉजिट सेंडिमेंट अलोंग द शोर्स फॉर्मिंग बीचेस। और इन्हीं सैंड क्लिफ के आसपास क्या होते हैं, बीचेस बन जाते हैं। वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी सेंडिमेंट रॉक इकट्ठी होती चली जाती है। वर्क ऑफ आइस। अब आइस क्या काम करती है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, जब हमने देखो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, फ्लो चार्ट पढ़ा है ना। तो इरोजनल डिपोजिशनल पढ़ा था। इरोजनल डिपोजिशनल जो फोर्स होता है वो किसके थ्रू होता है, रिवर, वाटर। अभी रिवर का हमने पढ़ लिया कि रिवर में की वजह से क्या क्या होता है, किस तरीके की लैंडफॉर्म बनती है। देन हम विंड का अभी नहीं पढ़ा, सी वेव्स का पढ़ लिया हमने, एंड ग्लेशियर्स। अब ग्लेशियर मीन्स आइस। पर मैं विंड को बता देती हूँ कि विंड में क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलती है, आपने देखा होगा कि जो हमारे ट्री हैं वो फ्लो करने लगते हैं, ट्री तो उसके साथ क्या होता है, इतने फोर्स से क्या होता है, लैंड की मिट्टी भी होती है, वो भी एक जगह से दूसरी जगह क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है। तो यही क्या होता है, प्रोसेस होता है। जैसे जब वो ट्रांसफ़र हो रही है एक जगह से, तो उसे बोला जाता है इरोजन। और जब वो एक जगह इकट्ठी हो जाती है मिट्टी, उसे क्या बोला जाता है, डिपोजिशन। जैसे हम डिपोजिशन इस तरीके से समझो, हम कहते हैं डिपॉजिट कर देना। डिपॉजिट मतलब इकट्ठा, डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। तो इसी तरीके से इरोजन मीन्स अलग करना है, डिपॉजिट मीन्स उस चीज़ को इकट्ठा करना। इसी तरीके से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। वर्क ऑफ आइस। ग्लेशियर आर रिवर ऑफ आइस विच टू erode the landscape by bulldozing soil and stones to expose the solid rock below, and glacier carve out deep hollow there. As the ice melt, they get filled up with water and become beautiful lakes in the mountain. क्या होता है, जो ग्लेशियर होता है, आइस क्या होता है, वो किसी एक रॉक पर क्या होती है, जमी होती है। और जब वो रॉक क्या होती है, जब वो आइस क्या होती है, मेल्ट होने लग जाती हैं, तो वो क्या अपने साथ थोड़ी रॉक्स का पार्ट भी लेके चलती हैं और एक लेक बना लेती हैं। अगर आप कभी माउंटेन एरिया पे गए होंगे तो आप देखे होंगे कि जो पानी है वो पत्थर से ऊपर होते हुए जाता है। तो वो जो पत्थर होते हैं ना, वो थोड़ा थोड़ा उसका पार्ट लेके भी वाटर चलता है। इसकी वजह से क्या होता है, इरोजन होता है। जब वो जो रॉक्स होती हैं एक जगह इकट्ठी हो जाती है, उन्हें क्या बोला जाता है, डिपोजिशन। The material carried by the glacier such as rock, big and small, and the slit gates deposit form glacier moraines. और जब ऐसे ये डिपॉजिट कहीं एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, ग्लेशियर मोरेन्स। नाउ वर्क ऑफ विंड। अब हमने विंड का वर्क नहीं पढ़ा था, तो अब वर्क ऑफ विंड पढ़ते हैं। हैव यू एवर विजिटेड अ डेजर्ट? ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर ऑफ sand dunes. An active agent of erosion and deposition in the desert is wind. जहाँ आपको पता है कि डेजर्ट एरिया में क्या होता है, जो हमारे जो सैंड होती है वो एक जगह से दूसरी जगह किसके थ्रू जाती है, विंड के थ्रू। क्योंकि डेजर्ट में पानी तो पड़ता नहीं है, वहाँ पे पानी तो आता नहीं है, तो वहाँ पे जो सैंड है कैसे इकट्ठी हुई थी, विंड के थ्रू। In desert you can see rocks in the shape of mushrooms, commonly called mushroom rocks. वहाँ पे रॉक्स होती हैं, वो किस शेप में होती हैं, मशरूम्स की शेप में होती हैं। मशरूम की शेप कैसी होती है, कुछ इस तरह की, ठीक है। विंड्स एरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन अपर पार्ट। वो क्या होता है, वहाँ की जो विंड होती है वो रॉक की लोअर सेक्शन को क्या करती है, ज़्यादा एरोड मतलब घिसती है, उसे वो बार बार स्ट्राइक करके जाती है विंड, और उसका जो लोअर पोर्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका इरोज होता है, इसलिए मशरूम शेप उसकी बन जाती है पत्थरों की। When the wind blow, it lift and transport sand from one place to another. When it stops blowing, the sand falls and great deposited in low hills like structure. They are called sand dunes. और जब हमारे क्या होता है, वो जब सैंड एक जगह डिपॉजिट होती चली जाती है तो एक हिल टाइप स्ट्रक्चर बनता है, उसे क्या बोला जाता है, सैंड ड्यून्स। और when the grains of sand are very fine and light, the wind can carry over very long distance. और जब वो जो
लैंड की जो सॉइल अगर ज़्यादा हल्की होती है और फाइन होती है तो वो बहुत दूर तक विंड उसे कैरी करती है। और व्हेन सच सैंड इज डिपॉजिटेड इन लार्ज एरिया इट इज़ कॉल्ड लूज। और ऐसी जो गर्म हवा डेजर्ट में चलती हैं, विंड जो डेजर्ट में चलती हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? लूज। एंड लार्ज डिपॉजिट ऑफ लूज इज़ फाउंड इन चाइना, है ना। अच्छा। और ज़्यादातर जो चीज़ें हैं जैसे सैंड, इस तरीके की बड़े बड़े सैंड के स्ट्रक्चर कहाँ पे मिलते हैं? हमें चाइना में मिलते हैं। हेयर इट्स चैप्टर इज़ फिनिश। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी आस्क मी एंड don't get hesitated to ask any question. I will handle every question whatever you ask. Okay.